Hello everyone, this is Snehal Shrivastava, and today we will discuss this editorial on good governance beyond motherhood and apple pie. So, in this article, we have to understand what is good governance is actually. So, I have made a small PPT on it, good governance and good governance. What is governance and what is good governance? Means the process of decision making is known as good governance, as well as the process by which decisions are implemented or not implemented. ठीक है, सो गवर्नेंस ये डिसाइड करता है. ठीक है, गवर्नेंस कितने तरीके के होते हैं? गवर्नेंस आर ऑफ मेनी टाइप्स लाइक कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंटरनेशनल गवर्नेंस, नेशनल गवर्नेंस एंड लोकल गवर्नेंस. Corporate governance we see in the corporate sectors like in private firms, private companies. International governance we see it in the at international level, that how international bodies like UNSC, G20 and many other like BRICS or etc. Govern the countries under it, and like example controlling the pollution, right, and many other things. National governance is at national level, means how a particular government control the country and govern the country, right? And local governance means how a particular state or and particular city is governed by the administrators, or yeah, we can say administrator or judges, and means the all the pillars of the constitution. Now, what is good governance? Here we will understand what is good governance is. Approach to government that is committed creating a system founded in justice and peace that protect individuals' human right and civil liberties. देखो, governance is about the process by which decisions are implemented or not implemented, right? This is governance, means the process of decision making is governance. But what is good governance? Means in good governance we make decisions, we build policies, right? But to ensure justice, ensure peace, ensure and protect individual human rights and civil liberties as well. सो ऐसा गवर्नेंस जहाँ पे हम जस्टिस को भी इंश्योर करें, लोगों को न्याय मिले, शांति बनी रहे माहौल में पूरे, चाहे वो नेशनल लेवल हो या इंटरनेशनल लेवल हो, इंडिविजुअल के ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना, सिविल लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट करने का काम करें, ये होता है गुड गवर्नेंस. ठीक है, नाउ गुड गवर्नेंस जो है यहाँ पे, गुड गवर्नेंस यूनाइटेड नेशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग गुड गवर्नेंस 8 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, नाउ 8 टाइप्स के कौन कौन से हो सकते हैं? पहला है कंसेंसस ओरिएंटेड, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, effective and efficient, follow the rule of law and participatory. Now, what is consensus oriented? Consensus oriented means that whenever government is going to frame a law, frame a policy, or anything is going to pass a bill or building an act, so government should always consult the public, right? Government should ask public, government should made a consensus like what public likes or what does public does not likes. Let's take an example. We have seen that means in India we have seen that the prices of goods are increasing day by day, right? We all know that due to COVID-19 pandemic, every nation is surviving, right? Every nation is fighting with we can say that inflation, we can say that to ensure the health of their citizen. So in this case, inflation is common in each and every country. Even we can say that India had controlled inflation very well, right? But still the prices are rising. So whenever government tries to raise the price of any product or any entity or any services from the government side, so according to consensus oriented governance, government should always ask public that should we increase the price, क्या हमें प्राइस बढ़ाना चाहिए, और should we stop increasing the price. This is consensus. Now next is accountable. What is accountable? Accountability means government should be accountable. Whatever he done, what जो भी गवर्नमेंट करे, इट शुड बी अकाउंटेबल कि हाँ ये चीज़ें मैंने करी हैं, एंड उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से
ले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी चीज़ होती है स्टेट में और गवर्नमेंट ब्लेम कर देती है, जैसे अभी रिसेंटली वी हैव सीन इन बिहार केस, बिहार हुच ट्रेजिडी, वेयर 30 पीपल्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ ड्यू टू we can say that due to poisonous liquors, and the chief minister of Bihar is saying that we are not responsible for these 30 deaths because as people are consuming the alcohol on their themselves, means they on their discretion they are consuming the alcohol, but it's government responsibility to ensure the life and health of the public. Even if they are consuming the alcohol, it should be the poison free liquors, right? it is the duty of it is the duty of the state to ensure poison free liquor, right? So Bihar government is not taking accountability, but it should take accountability whatever has been done or is going in that particular state. Now transparency means we are seeing, means we have seen that electoral bond वाला केस, electoral bond case, what is electoral bond case? electoral bond case में क्या है कि अभी फ़िलहाल ऐसा कोई केस नहीं है, मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को ऐसा केस बोल रहा हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में क्या है कि अभी जो नए इलेक्टोरल बॉन्ड्स है उसमें ये है कि कौन पैसे दे रहा है, जो पार्टी, मतलब कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, कोई भी है, वो पार्टी ए को पैसे देना चाह रही है, ठीक है, तो वो जाएगी एसबीआई की ब्रांच में, और एसबीआई की ब्रांच में इस पर्टिकुलर एंटिटी, मतलब इस इंसान का अकाउंट होगा। ये इससे कहेगी कि मुझे भी कुछ मतलब कि मुझे आप बॉन्ड दे दो, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 10 करोड़ का। अब कौन डोनेट कर रहा है, ये किस पार्टी को जा रहा है, ये चीज़ें ट्रांसपेरेंट है ना। तो ये ये चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं है ना। हमें नहीं पता चल रहा कि कौन पैसे एसबीआई के थ्रू इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को डोनेट कर रहा है। इससे क्या होगा, अगर हम लेट्स अज्यूम कि एक पर्टिकुलर फर्म है ए, ठीक है, अब ये फर्म जो है बहुत हैवी पैसे, बहुत हैवी फंड जो है एक रूलिंग गवर्नमेंट को प्रोवाइड करे, ठीक है, और ये फर्म इसके बदले में कहे कि मुझे आप पॉल्यूशन करने की आज़ादी दे दो, और ये जो रूलिंग गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसने कह दिया कि ठीक है चलो आप मुझे ढेर सारे पैसे दो और मैं बदले में आपको अथॉरिटी देता हूँ कि आपके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग नहीं करी जाएगी पॉल्यूशन करने पे। इससे क्या हो रहा है, आम जनता का लॉस हो रहा है। तो ये चीज़ें अगर पहले से पता रहे इंसान को, जनता को पता रहे, तो जनता भी सोच समझ करके उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को दोबारा वोट देना है या नहीं देना है ये सोचे करेगी। तो ट्रांसपेरेंसी शुड बी मेंटेन। रिस्पॉन्सिव मीन्स आप गवर्नमेंट के पास हेल्प के लिए गए कि हमें अभी रिसेंटली, अभी कल का ही केस है जहाँ पे एक ब्रेस्ट कैंसर का केस रहता है, जहाँ पे उनको ल्यूमिनल ए ब्रेस्ट कैंसर रहता है, और वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट केरला हाई कोर्ट के पास जाती हैं, वहाँ से बोलती हैं कि हमारा राइट टू हेल्थ है, हमें इतनी महंगी दवाई हम नहीं करवा सकते। बट गवर्नमेंट ने इसकी कोई जेनरिक दवा भी नहीं रखी है जो हम सस्ते में यूज़ कर सकें, और गवर्नमेंट ने उनको मना कर दिया, कहा कि नहीं, हम आपको इसको कम में प्रोवाइड नहीं करवा सकते, जो रेट है वो सही है, और मतलब ओवरऑल उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं, हम इसकी जेनरिक दवा भी बनने को अलाउ नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स तो दिया, लेकिन ये जो आर्टिकल 21 में राइट टू हेल्थ है, राइट टू लाइफ है, उस पर्टिकुलर लेडी का जो ब्रेस्ट कैंसर से, ल्यूमिनल ए ब्रेस्ट कैंसर से सर्वाइव कर रही है, उसके राइट टू हेल्थ को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव, और रिस्पॉन्सिव के साथ साथ हमने बोला ना कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना चाहिए, गवर्नमेंट को सेंसस ओरिएंटेड होना चाहिए। तो रिस्पॉन्स तो करना चाहिए, बट एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना चाहिए गवर्नमेंट में, क्योंकि जो जनता होती है वो अपने काम में बिजी होती है, भाई सबके अपने अपने काम है, बट गवर्नमेंट जो फॉर्म होती है ना, वो गवर्नमेंट जनता की भलाई के लिए ही बनी होती है। तो जब कोई जनता में से कोई निकल करके जा रहा है गवर्नमेंट के पास अपनी बात को लेके, सो गवर्नमेंट शुड रिस्पॉन्ड इन अ पॉजिटिव वे, राइट। नेक्स्ट आगे, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो पावर्टी गैप है वो बढ़ता जा रहा है, पावर्टी गैप बढ़ता जा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ती जा रही है। जो रिच पीपल्स हैं वो और रिच होते जा रहे हैं, और जो पुअर पीपल्स हैं वो और पुअर होते जा रहे हैं, ठीक है। मतलब इनका जो गैप है ना, हम कह सकते हैं पे गैप कह लें, तो वो बढ़ता ही जा रहा है। रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअर। सो ये जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो गैप है ना, ये गैप ख़त्म होना चाहिए,
और लगभग लगभग सबको बराबर पैसे मिलने चाहिए, है ना, और काम भी सबसे उतने लेने चाहिए। तो ये इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, ये वाली बात यहाँ पे आ जाती है कि इक्विटेबल तरीके से होना चाहिए, कहीं पे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। बट ऐसा है, हमारे इंडिया में भी है। इंडिया में तभी तो जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है लोगों में। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, अब गवर्नमेंट कोई भी लॉ लेकर के, बिल लेकर के आती है तो इफेक्टिव होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो इफेक्टिव ही नहीं है, आपने ला तो दिया बट इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा, है ना। जैसे स्टबल बर्निंग को गवर्नमेंट लेकर के काफ़ी लॉज लेकर के आती है कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन कोई मानता नहीं है। तो इफेक्टिव होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को लोगों की मेंटालिटी पे वर्क करना पड़ेगा, उनकी मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे एक ऐसा रास्ता अपनाना पड़ेगा जो हम कह सकते हैं कि उनके एथिकल बिहेवियर, उनके बिहेवियर में चेंज लाना पड़ेगा। हम कोई फ़ाइन वाइन लगा करके उनसे स्टबल बर्निंग नहीं रोकवा सकते, क्योंकि आप कितना स्टबल बर्निंग रोको, किसको किसको रोकोगे, है ना। तो ये एक केस हो जाता है। फॉलो द रूल ऑफ लॉ, अब रूल ऑफ लॉ को गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट लॉ बना तो रही है बट बाद में कहे कि नहीं हम फॉलो ही नहीं करेंगे। जैसे अभी जो केरला में वुमेन है उसको जो है राइट टू हेल्थ डिनाई कर दिया। वो हो सकता है गवर्नमेंट का कुछ पर्टिकुलर केस हो, गवर्नमेंट के रूल्स हों, इस वजह से उन्होंने मना किया। लेकिन आपको हाँ बिल्कुल, मतलब रूल ऑफ लॉ को फॉलो तो किया, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो है, जो जनता आ रही है उसका भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते हम उनको डिनाई कर दी, है ना, बल्कि देखते हुए कि हाँ वो एक प्रॉब्लम में है। पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए। पार्टिसिपेटरी मतलब सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ लेट्स अज्यूम कि वो सिर्फ अपर कास्ट को ही ले ले, या फिर वो सिर्फ लोअर कास्ट को ही ले ले, है ना, या फिर वो सिर्फ मिडिल क्लास को ही ले ले। तो ऐसा नहीं, वो सबको इंक्लूड करके ही चलना चाहिए। जैसे एग्जांपल, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला जो नया लॉ आया, नया एक्ट आया, इसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जिन जो इकोनॉमिक बेसिस पे लोगों को क्या किया जाएगा, रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेसिस पे प्रोवाइड करना, दैट्स वेरी गुड। क्यों? क्योंकि कास्ट के बेसिस पे आप किसी को नहीं जज कर सकते कि उनके पास पैसा कम है, रिसोर्सेज कम है या ज़्यादा है ना। तो आपको एक अच्छा, एक न्यूट्रल भी वो होना चाहिए जो कि कास्ट से ऊपर हो, और इकोनॉमिक बेसिस होना चाहिए जिसमें सही में हम लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड करें तो उनको उसका मतलब निकल के आए, ऐसा ना हो कि वेस्ट हो। तो पार्टिसिपेटरी मतलब उन्होंने सबको यहाँ पे ध्यान दिया, सबको इंक्लूसिव तरीके से लिया। इसके बाद इंडियन इनिशिएटिव्स फॉर गुड गवर्नेंस। अब इंडिया का क्या इनिशिएटिव रहा है गुड गवर्नेंस के लिए? इंडिया के इनिशिएटिव में अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन ये सेटअप किया गया, और इम्पैक्ट ऑफ वेरियस इंटरवेंशन टेकन अप बाय स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो मतलब कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक अच्छे गवर्नेंस के लिए एक मिनिस्ट्री सेटअप करी गई जो पब्लिक ग्रीवेंसेस को एड्रेस करती है ना। पब्लिक ग्रीवेंसेस का मतलब है कि पब्लिक को कोई प्रॉब्लम है तो पब्लिक क्या करेगी, उस मिनिस्ट्री के पास जाएगी और मिनिस्ट्री से अपनी कंप्लेन करेगी। मिनिस्ट्री गवर्नमेंट को चेक करेगी कि गवर्नमेंट क्या सही कर रही है इस चीज़ को लेके या गलत कर रही है, और फिर एक रिज़ल्ट निकल के आएगा कि हाँ लोगों के फेवर में कुछ ना कुछ होगा। गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। मेक द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी भी 25 दिसंबर को होती है, और 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जाता है। एम इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस। अब ये क्यों मनाया जाता है? जिससे कि लोग अवेयरनेस हो, अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट अमंग द सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब कि हम देखो अभी क्या हमारा जो बिहेवियर है ना, हम जब भी किसी भी पब्लिक ऑफिशियल के पास जाते हैं, ऑफिसर के पास जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम छोटे हैं एंड ही इज़ बिगर। तो एक्चुअली में तो ऐसा नहीं है। दे आर द पब्लिक सर्वेंट्स। उन्हें क्या करना है, पब्लिक को सर्व करना है, ना कि पब्लिक उन्हें सर्व करे। तो अब जब तक ये बिहेवियर नहीं चेंज होता लोगों में, लोग इस चीज़ को समझते नहीं, तब तक गवर्नमेंट भी अकाउंटेबल नहीं होगी, वो पब्लिक सर्वेंट्स भी अकाउंटेबल नहीं होंगे। सीधी सी बात है, अगर अब वो जिम्मेदारी लेके काम नहीं करेंगे, वो सोचेंगे ठीक है हम तो कर रहे हैं, इट्स ओके, हमें जितना मन करेगा उतना करेंगे, हमारे पास पावर है, हमारे पास पैसा है, ये सब चीज़ हो। लेकिन अगर आप अवेयर हैं तो आप अपने फंडामेंटल राइट्स और बाकी जो भी चीज़ें उनका यूज़ करके अपने राइट्स को इंश्योर करवा सकते हो और अकाउंटेबल ठहरा सकते हो उन लोगों को जो लोग उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल होने चाहिए। नेक्स्ट, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान ये कहता है कि मेक ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेसिबल टू द कॉमन मैन। मतलब कि
गवर्नमेंट सर्विसेज में हम जनरली देखते हैं कि पहली बात तो गवर्नमेंट पैसे सही में कम लेती है। कम इन द सेंस, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये, कम लेने का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट देखो लोगों को राशन प्रोवाइड कराती है ना, मिड डे मील प्रोवाइड कराती है। गवर्नमेंट ने अभी कोविड-19 के टाइम पे वैक्सीनेशन भी फ्री रखी। तो हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपनी सर्विसेज को एक्सेसिबल बना रही है कॉमन मैन के लिए। मतलब ये एक गुड गवर्नेंस प्लान को शो करता है ना। और ई गवर्नेंस प्लान को भी शो करता है। ई गवर्नेंस प्लान की जब बात करते हैं तो मतलब कि जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, अब कोविन एक प्लेटफॉर्म था जिसमें हम लोग जा कर के क्या करते थे, वैक्सीनेशन के लिए, कोविड से वैक्सीनेशन के लिए हम लोग वहाँ पे जा कर के बोलते थे कि बोलते मतलब कि रजिस्टर करते थे कि येस वी वांट टू रजिस्टर एंड वी वांट टू गेट वैक्सीनेटेड। हमारी एक स्लॉट बुक होती थी, स्लॉट में जा कर के हम अपना वैक्सीनेशन करवाते थे और वो फ्री था टोटली। तो कॉमन मैन को वहाँ पे क्या मिला, सुविधा मिली फ्री में। और कॉमन सर्विसेज, डिलीवरी आउटलेट, एंश्योर एफिशिएंसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एंड रिलायबिलिटी होनी चाहिए। और बिल्कुल ये एक रिमार्केबल स्टेप था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि रूलिंग पार्टी थी उस टाइम पे और अभी भी है। उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सीरियस लिया इस सब चीज़ों को। अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने के बाद भी इंडिया बहुत जल्दी रिकवर किया और हमने देखा कि हमने कई कंट्रीज़ को साथ ही साथ वैक्सीन्स भी प्रोवाइड करी। सो दैट वाज अ वेरी रिमार्केबल, वेरी 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 अप्रिशिएबल स्टेप ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, नाउ फिर आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। इट प्लेज एन इफेक्टिव रोल इन इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। अभी हमने देखिए बात किया था इसमें हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी को भी लेकर के बात किया था। तो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में लेके और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन भी बनाया। सॉरी, इट्स नॉट इलेक्शन कमीशन, इट्स इन्फॉर्मेशन कमीशन, है ना। इन्फॉर्मेशन कमीशन भी सेटअप किया। इन्फॉर्मेशन कमीशन में आप जाओगे, इसमें चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। अभी के टाइम पे एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है और जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं वो 10 होने चाहिए, बट अभी सिर्फ 6 हैं ना, 4 वैकेंट सीट्स हैं। बट स्टिल गवर्नमेंट ने इसको सेटअप किया। ठीक है, सेटअप करने का मतलब क्या है, आप किसी को भी कोई भी दिक्कत है वो जाएगा इन्फॉर्मेशन कमीशन में, वहाँ पे अपनी रिड्रेसल डालेगा या अपनी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो डालेगा। इन्फॉर्मेशन कमीशन उस पर्टिकुलर बॉडी से बात करेगा, कहेगा मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए और फिर ये वो इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर पर्सन को देगा। मतलब यहाँ पे ये हमारी जनता बैठी हुई है और ये हमारी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं। ये इन्फॉर्मेशन जनता तक पहुँचेगी गवर्नमेंट बॉडी से और इसका काम बीच में कौन करेगा, मीडिएटर की तरह इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा स्टेप था गवर्नमेंट के द्वारा और इसी तरह से गवर्नमेंट और भी ऐसे स्टेप्स लेकर के आ रही है। अदर इनिशिएटिव्स में नीति आयोग, मेक इन इंडिया प्रोग्राम और लोकपाल, ये सारी चीज़ें भी हैं जो कि गवर्नमेंट ने करी लोगों को, मतलब कि गवर्नमेंट को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। सो गुड गवर्नेंस है और गवर्नेंस से रिलेटेड आर्टिकल यही था, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा।